Good afternoon, Honorable Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Shri Sarbanand Sonowal sir, the respected Secretary of Ministry of Port, Shipping and Waterways, Shri Vijay Kumar ji, our friends from visual and print media, and officers from Ministry of Port, Shipping, Waterways, Indian Port Association, and Maharashtra government. On behalf of Indian Port Association and on my personal behalf, I extend a warm welcome to all of you to this press briefing regarding the upcoming major maritime event of our ministry, that is India Maritime Week 2025. This major event is scheduled from 27th of October, which is a Monday, to 31st October of 2025. That is a full 5-day event from Monday to Friday. This is in continuation of the events which have happened in 2016 at the same venue, 2021, which is a virtual event because of the corona pandemic, and 2023, which again happened in the city of Mumbai, and this event now, which is happening in the end of this month. While the earlier events have set the tone on what importance Honorable Prime Minister and Government of India is giving to the maritime sector, the scope has been enlarged much more now in keeping with the ambition of making our country one of the major maritime nations in the world. The participation is expected from more than 100 countries, and many of them have confirmed their participation as country partner, which you will be briefed in due course of this interaction. We don't only have Global Maritime India Summit, GMIS, which was the event which happened in 2023, but there are 12 concurrent events along with that. There's participation from all the coastal states of our country and also from Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands. And not only that, we have inland states which are benefited by our national waterways. They are also participating in a big way in this event. The goal is to cover all the aspects of maritime sector, whether it is ports infrastructure, or it is shipping industry, or it is shipbuilding, shipbreaking, or even other aspects where technological upgradation and digital transformation has to take place. On behalf of Indian Port Association, I extend a warm welcome to Honorable Minister Sir, respected Secretary Sir, and all of you once again to this press interaction. Thank you. Respected Honorable Union Minister, my dear colleagues from Ministry, and my dear friends from media. तो जैसा अभी सुनील ने आपको बताया, some background about the event, the India Maritime Week. So what is also important is the timing of the event. ये event जब हो रहा है, आप सबको पता है, कुछ ही समय पहले भारत सरकार ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विज़न के अनुसार, हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर सोनोवाल जी की गाइडेंस के अंदर 4 मेजर पिलर्स जो हैं हमारे शिपिंग इकोसिस्टम के, उनको अनाउंस किया। लगभग 70,000 करोड़ का पैकेज शिप बिल्डिंग के लिए, शिप बिल्डिंग में फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, हमारे शिप यार्ड्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, हमारे नए शिप यार्ड्स बनाने के लिए, हमारे शिप बिल्डिंग की ट्रेनिंग, उनकी स्किल डेवलपमेंट, हमारे शिप बिल्डिंग में लॉन्ग टर्म फाइनेंस थ्रू मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, इनके माध्यम से, प्लस
जो हमारी शिपिंग इंडस्ट्री की जो एक बहुत लंबे समय की डिमांड थी टू गिव इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू शिपिंग, दैट वाज आल्सो अनाउंस्ड रिसेंटली. So broadly speaking, the entire ecosystem to make India as a global shipping power has been put in place by the government. It's a very, very exciting time for the industry to be there. ये इवेंट जो हमारा है मैरीटाइम वीक, इसमें जो हमारे पूरे दुनिया भर के डेलीगेट्स आएंगे फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्री, फ्रॉम द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, उनके लिए ये एक गोल्डन चांस है, एक्सपॉन्डिंग मौका है कि जो नया इकोसिस्टम बन रहा है भारत के अंदर शिप बिल्डिंग के लिए, शिपिंग के लिए, इसका इस्तेमाल कर सके. तो इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट. तो टाइमिंग ऑफ दिस इवेंट इज़ वेरी वेरी अपॉर्चुन. और ये हमारा 4th एडिशन है इंडिया मैरीटाइम वीक का. इससे पहले हमारे 3 इवेंट हो चुके हैं. ऑल दोज इवेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड वेरी वेल, लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन, lot of MOUs were signed, lot of investment came in. But this 4th edition is going to be far, far higher in scale, far, far higher in ambition. इसके अंदर जैसा अभी सुनील ने बताया, if you look at the broad numbers, we are expecting participation from more than 100 countries all over the world, including all the major maritime countries. We are expecting 230 speakers, over 150 sessions. We have already got investment commitments, MOUs reaching 10 lakh crores, which is the target also, which we will exceed. So इस मैरीटाइम वीक के अंदर 10 लाख करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट भारत में लाने के MOU साइन होंगे. अपने आप में ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा हमारे शिपिंग इंडस्ट्री के लिए, एंटायर इकोसिस्टम के लिए, और इंडिया को ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर इट विल प्लेस अस एज ए मेजर पावर, मेजर प्लेयर. सो विद दिस आई विल अगेन रीट्रेट, दिस इवेंट विल पुट अस ऑन द ग्लोबल मैप, विल ऑल्सो पुट महाराष्ट्र, particularly Mumbai, at the center of the action. With this, I'll conclude. Thank you. हमारे मुंबई की आदरणीय पत्रकार बंधुगण और हमारे मंत्रालय के सचिव विजय जी और हमारे पोर्ट एसोसिएशन की अध्यक्ष पलिवाल जी, जैसे पलिवाल जी और विजय जी ने आप लोगों को अगली मैरीटाइम समिट के सिलसिले में जो 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा मुंबई शहर में, इसी वेन्यू पर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोगों ने आप सबका सहयोग चाहते हैं. कुछ देर पहले हम लोगों ने महाराष्ट्र प्रदेश सरकार के साथ बातचीत की और पिछली 2016 से जितना भी हमारे समिट हुई, हर समिट की सफलता के पीछे आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है. तो इसलिए हम चाहते हैं कि अगले कार्यक्रम में भी आप लोगों का पहले जैसे ही सहयोग रहे. और आज परम आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में उनकी सारी हमारे अधिकारीगण और हमारे मंत्रालय के अधिकारीगण हम लोगों ने बातचीत की और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम सब लोगों ने एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हुए. आप सबको मालूम है, पिछले 11 साल में हमारे देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुशल नेतृत्व की वजह से देश के अलग अलग विभाग का साथ
पोर्ट शिपिंग वाटरवेज, इस सेक्टर को भी बहुत बड़ा शक्ति मिला, साहस मिला, आत्मविश्वास मिला, जिसकी वजह से आज इस सेक्टर में नई नई सफलता की तस्वीर खड़ा करने में हम लोग सफल हुई है। और इस दौरान विशेष रूप से आप लोगों को मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए 2 विजन दी है, मैरीटाइम विजन 2030, मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। 2 विजन के मुताबिक अगली 2047 तक हम दुनिया की 5वें सर्वश्रेष्ठ शिप बिल्डिंग नेशन के बीच में एक होंगे और 2030 तक अगली 5 साल का बाद हम दुनिया की टॉप 10 शिप बिल्डिंग नेशन में से एक होंगे। तो अमृतकाल विजन के लिए अगले दिनों के लिए 25 साल में 80 लाख करोड़ का निवेश होगा इस सेक्टर में। ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन ऑल द verticals, whether it is port, whether it is institution, research, design, whether it is shipbuilding, ship repair, ship recycling, and all other ancillary ecosystem. And every vertical of this maritime industry will be strengthened, and it will create such an ecosystem which will draw the attention of the global giant in this sector to put their investment in India, because we are creating not only through the policies of doing business, but at the same time good governance, dynamic leadership, policy, program and initiative, and timely implementation, and also the quality workforce. It is all happening because of Honorable Prime Minister Narendra Modi's vision and his dynamic leadership, and his commitment, his honesty, his devoted effort, and in inspiring the people of the country in the principle of Sabka Saath, Sabka Vikas. And I believe अगली जो कार्यक्रम हमारे होंगे इंडिया मैरीटाइम वीक, इस कार्यक्रम में हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी रहेंगे, साथ साथ में हमारे साथी केंद्र सरकार के मंत्री भी रहेंगे, और अलग अलग प्रदेश के हिंटरलैंड स्टेट से भी अलग अलग प्रदेश से हमारे मंत्री होंगे, विभाग के मंत्री होंगे ट्रांसपोर्ट सेक्टर के, और कोस्टल स्टेट का भी हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो कुल मिलाकर जो भी हम लोगों ने रूपरेखा तय की है, इस रूपरेखा को सफल रूप देने के लिए आप लोगों का सहयोग चाहिए। विशेष रूप से मुंबई महाराष्ट्र की जनता की सहयोग के बिना हम सफल नहीं हो सकते। और आज हमें सरसा कालखंड में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि पिछले जो भी कार्यक्रम हुई, जैसे महाराष्ट्र की तरफ से सहयोग की गई थी, उसी हिसाब से इस बार भी सहयोग किया जाएगा। तो ये जो है गठबंधन, ये जो है डबल इंजन सरकार की शक्ति, और मुझे लगता है कि आप सबका अनुभवी पत्रकार बंधुओं का अगर सहयोग मिल जाए, निश्चित रूप से हम देश को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य दी है, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, वन ऑफ द टॉप मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड बाय 2047, उसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम निश्चित रूप से एक साथ अगर जुड़ जाएंगे, हम सफल होंगे।